Good morning, students. Today's next part is describe the process to separate acetone and water from their mixture using simple distillation. Describe the process to separate the acetone and water from their mixture. Now, activity is to separate the components of a liquid mixtures. To separate the components of a liquid mixture containing acetone having boiling point 56 degrees Celsius and water having boiling point 100 degrees Celsius. This is the activity. Now, apparatus required for the separation of mixture of acetone and water. Apparatus are distillation flask, water condenser, two receivers, thermometer, etc. Once again, what are the apparatus required for the distillation of mixture of acetone and water? Distillation flask with condenser, two receiver, thermometer, etc. Chemicals, mixture of acetone and water. Mixture of acetone and water. Now, the principle of this separation, acetone and water are two miscible liquids. Acetone and water are two miscible liquids having a wide difference in their boiling point. Acetone having boiling point 56 degrees Celsius and water having boiling point 100 degrees Celsius. Acetone and water are two miscible liquids having a wide difference in their boiling point. Acetone boils at 56 degrees Celsius while water boils at 100 degrees Celsius. When the mixture of acetone and water is heated, and temperature of the mixture reaches 56 degrees Celsius. When the mixture of acetone and water is heated and temperature of the mixture reaches 56 degrees Celsius, acetone starts distilling. Because of acetone boils at 56 degrees Celsius, when the mixture of acetone and water is heated and temperature of the mixture reaches 56 degrees Celsius, acetone would distill off. When all acetone distills out and when the temperature rises to 100 degrees Celsius, water distills out. When all acetone distills out and when the temperature rises to 100 degrees Celsius, water distilled out. Okay, this is the principle of this experiment. Now, what is the procedure? Take the mixture of acetone and water in a distillation flask. This is the diagrammatic representation for distillation of mixture of acetone and water. Take the mixture of acetone and water in a distillation flask and arrange the apparatus. Heat the flask on a water bath because of acetone is a volatile liquid. That's why if the liquid having lower boiling point, then the distillation is carried out by heating distillation flask in water bath. Heat the flask on a water bath carefully. At 56 degrees Celsius, acetone will distill out. At 56 degrees Celsius, acetone will distill out. Collect it in receiver number 1. Collect the liquid of acetone in receiver number 1. After all acetone distilled, change the receiver. Discard a few ml of the liquid because of it is some impurity present in that mixture. Discard a few ml of the liquid. As the temperature reaches 100 degrees Celsius, water will begin to distill. As the temperature reaches 100 degrees Celsius, water will begin to distill. Collect this in receiver number 2. This is a second part, that is
pure liquid of water. Okay, this is the distillation of mixture of acetone and water. Okay, क्या करना है देखो, एक्टिविटी क्या है, टू सेपरेट द components of a liquid mixture containing acetone having boiling point 56 degrees Celsius and water 100 degree Celsius having boiling point 100 degree Celsius. apparatus कौन कौन से लग रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ कंडेंसर, टू रिसीवर्स, रिसीवर नंबर 1 and receiver number 2, thermometer which is connected to distillation flask. okay, principle क्या है देखो, acetone and water are two miscible liquids having a wide difference in their boiling point. उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. ओके, एसीटोन बॉइल्स एट, एसीटोन का डिस्टिलेशन कितने टेम्परेचर को होता है, 56 डिग्री सेल्सियस को, और वाटर का डिस्टिलेशन कितने टेम्परेचर को होता है, 100 डिग्री सेल्सियस को. ओके, व्हेन द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है, तब जब 56 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर रीच हो जाता है, तब एसीटोन का डिस्टिलेशन होने लगता है, क्योंकि वो एसीटोन बॉइल्स एट 56 डिग्री सेल्सियस. एट 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन डिस्टिल्स आउट. ओके, व्हेन ऑल एसीटोन डिस्टिल्स आउट, जब पूरा एसीटोन उस मिक्सचर में से निकल जाएगा, एंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस, पूरा एसीटोन निकलने के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस को आएगा, तब वाटर का डिस्टिलेशन होगा, बिकॉज ऑफ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर का वेपराइजेशन होगा और उसका डिस्टिलेशन होगा. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल. प्रोसीजर क्या है देखो, टेक द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड अरेंज द एपरेटस. पहले मिक्सचर को, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है और एपरेटस को अरेंज करना है. हीट द फ्लास्क ऑन अ वाटर बाथ केयरफुली, उस फ्लास्क को वाटर बाथ के ऊपर हीट करना है, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एसीटोन ये वोलाटाइल लिक्विड है, इसलिए डिस्टिलेशन फ्लास्क को वाटर बाथ में हीट करना है. एट 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन विल डिस्टिल्स आउट, जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस को आएगा, तब एसीटोन का डिस्टिलेशन होगा, और उस एसीटोन को कलेक्ट करना है रिसीवर 1 में. ओके, आफ्टर ऑल एसीटोन डिस्टिल्ड, जब पूरा एसीटोन उस मिक्सचर में से निकल जाएगा, आफ्टर ऑल एसीटोन डिस्टिल्ड चेंज द रिसीवर, वो रिसीवर है, वाटर कंडेंसर के नीचे जो रिसीवर रखा है, उस रिसीवर के नीचे से वाटर कंडेंसर के नीचे से रिसीवर निकाल देना है, रिसीवर नंबर 1 को, और दूसरा रिसीवर लगा देना है. आफ्टर ऑल एसीटोन डिस्टिल्ड चेंज द रिसीवर, डिस्कार्ड अ फ्यू ml ऑफ लिक्विड. जब पहला रिसीवर निकाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड उस कंडेंसर में से बाहर निकल जाएगा, उस लिक्विड को छोड़ देना है, उसे कलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज ऑफ दैट इज सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर. ओके, एज द टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन पूरा कलेक्ट करने के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तब वाटर का डिस्टिलेशन होगा. As the temperature reaches 100 degree Celsius, water will begin to distill. वाटर का डिस्टिलेशन होगा, और कलेक्ट दिस इन रिसीवर नंबर 2, और डिस्टिलेशन होने के बाद उस प्योर वाटर को रिसीवर नंबर 2 में कलेक्ट करना है. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. ओके, नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन with neat and label diagram. Describe the process of fractional distillation with neat and label diagram. Fractional distillation, दो फ्रैक्शन को अलग करना है, जिन दो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Describe the process of fractional distillation with neat and label diagram. Okay, in this diagram it contains distillation flask which is connected to fractionating column, and fractionating column it is then connected to condenser, whether it is a water condenser or air condenser, and the condenser it is then connected to receiver. Okay, now
In fractional distillation, vapors first pass through the fractionating column. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पहले वेपर्स किस में से पास होते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से. इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेपर्स फर्स्ट पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. यहां पर दो तरीके के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिए हैं, सिंपल पैक कॉलम एंड बबल प्लेट कॉलम. दो तरीके के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिए हैं. पहला है सिंपल पैक कॉलम और दूसरा है बबल प्लेट कॉलम. ओके. वेपर्स ऑफ मोर वोलाटाइल लिक्विड, जो लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल है वो लिक्विड, वेपर्स ऑफ मोर वोलाटाइल लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप मोर देन द वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उस लिक्विड के वेपर पहले बन जाएंगे और वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चले जाएंगे, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके वेपर्स बाद में बन जाएंगे. वेपर्स ऑफ मोर वोलाटाइल लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप मोर दैन द वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट. ओके. एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल. ओके. ये पहले दो पॉइंट है वो प्रिंसिपल. नाउ एग्जाम्पल. सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी. हमारे पास दो मिक्सचर है लिक्विड के, एक है ए और दूसरा है बी. सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स 363 Kelvin and 373 Kelvin. 363 Kelvin and 373 Kelvin. Okay. A is more volatile and B is less volatile. इन दोनों में से A का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मीन्स इट इज अ हाईली वोलाटाइल, एंड B का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मीन्स इट इज अ लेस वोलाटाइल. ओके. As the mixture is heated, vapors of A along with a little vapors of B rises up. As the mixture is heated, vapors of A along with a little vapors of B rise up and come in contact with the large surface of fractionating column. देखो, इस मिक्सचर को हीट करने के बाद पहले ए के वेपर बन जाएंगे और उस ए के वेपर के साथ थोड़े वेपर बी के भी होंगे, और ये दोनों वेपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से ऊपर जाते वक्त दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ लार्ज सरफेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ लार्ज सरफेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. वेपर्स ऑफ बी कंडेंस रैपिडली. बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से बी लिक्विड के वेपर्स ऊपर जाते वक्त, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से ऊपर जाते वक्त वो फिर से नीचे आएंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. और वेपर्स ए, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वो वोलाटाइल है, इसलिए वेपर्स ऑफ ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से ऊपर चले जाएंगे और बी के वेपर्स नीचे आ जाएंगे. ओके. वेपर्स ऑफ बी कंडेंस रैपिडली इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. वेपर्स ऑफ बी कंडेंस रैपिडली इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क. While passing through the fractionating column, there is an exchange between the ascending vapors. When two vapors of liquid passes through fractionating column, तो वहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं. While passing through the fractionating column, there is an exchange between the ascending vapors and descending liquids. वेपर्स ऊपर चले जाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर्स ऊपर चले जाएंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके वेपर्स नीचे आ जाएंगे. दैट इज द टू प्रोसेसेस. व्हाइल पासिंग थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड. द वेपर्स ऑफ बी आर स्क्रब्ड ऑफ बाय द डिसेंडिंग लिक्विड. मतलब लिक्विड बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होते वक्त उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से क्या हो जाएगा? डिसेंड हो जाएगा. ओके. सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वन. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम. इस प्रोसेस को रिपीट करना है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम द वेपर्स एंड लिक्विड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. The vapors and liquid come in contact with the surface in the fractionating column.
rising vapors becomes richer. Rising vapors becomes richer in A, क्योंकि A volatile है. Okay, so that's why rising vapors becomes richer in A and escape through the fractionating column. Okay, and escape through the fractionating column and reach the condenser. While the liquid in the distillation flask is richer in B. So the separated components are further purified, और दो सेपरेट किए हुए component है, the separated components are further purified, उसे फिर से purified करना है by repeating the process. Okay, so this is the fractionating column, fractional distillation of mixture of two liquids. Okay, fractional distillation. Describe the process of fractional distillation with neat and label diagram. Okay, now explain distillation under reduced pressure. डिस्टिलेशन प्रेशर रिड्यूस करने के बाद भी डिस्टिलेशन किया जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखो. एक्सप्लेन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. फर्स्ट पॉइंट इज liquid having very high boiling point. Liquid having very high boiling point or which decomposes on heating. The liquid having high boiling point or the liquid which on heating decomposes. Liquid having very high boiling point or which decomposes on heating are purified by the method of distillation under reduced pressure. मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जिस लिक्विड को हीट करने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, उस लिक्विड का प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन से किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर. ओके, इन दिस मेथड द लिक्विड इज मेड टू बॉइल. At a temperature lower than its normal boiling point. In this method, the liquid is made to boil at a temperature lower than its normal boiling point. Means इस मेथड में जिस लिक्विड को प्यूरिफाइड करना है, उस लिक्विड को उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में हीट करना है. In this method, the liquid is made to boil at a temperature lower than its normal boiling point by reducing the pressure on its surface. उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर रिड्यूस करने के बाद उसका डिस्टिलेशन करना है. The external pressure is reduced using a water pump or vacuum pump. जो एक्सटर्नल प्रेशर इस्तेमाल करना है, द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस यूजिंग वाटर पंप और वैक्यूम पंप. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोप. देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन अल्कली के साथ करने के बाद, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ऑन रिएक्शन विद अल्कली लाइक NaOH और KOH, इट प्रोड्यूसेस सोप एंड ग्लिसरॉल. और उस मिक्सचर में से ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोप बाय यूजिंग दिस मेथड. उस मिक्सचर में से सोप और ग्लिसरॉल के मिक्सचर में से ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो दैट इज द distillation under reduced pressure. Okay, now explain the process of solvent extraction with neat and label diagram. Explain the process of solvent extraction with neat and label diagram. ये हम लोग कल देखेंगे. ओके, थैंक यू. दिस इज द टूडेज पार्ट. आपको आज का होमवर्क है, आपको डायग्राम निकालनी है. ये डायग्राम निकालनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विथ नीट एंड लेबल डायग्राम. ये डायग्राम निकालनी है और जो पढ़ा है वो बाय हार्ट करना है. क्या क्या डिफ़िकल्टी आएगी तो पूछो. टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है आपको, लेकिन मैंने ये नोट्स निकाले हैं. ओके, सो थैंक यू वंस अगेन.